Khoobsurat is it's a fairy tale. It's Disney's first branded film, and my sister has produced it, directed by Shashank Ghosh. Predominantly a love story hai. It's a romantic comedy, and it's a fun film for people of all ages. It's a family entertainer. I think most young girls would be similar to the role that I played in Khoobsurat. Her name is Mrinalini Chakraborty, and she is a modern young girl. I'm definitely not a doctor, I'm definitely not Bengali, and I'm not from Delhi, but certain quirks are very similar. She is very passionate about her job. She is not afraid to speak her mind, and she's not afraid to fall in love and put herself out there. And I think a lot of young girls these days, and a lot of young people these days are like that. So yeah, if you could say that, then yeah, I am. जी उन्होंने कहा कि हर सीन में मैंने बहुत अच्छा काम किया है. I don't like to praise myself, और अगर रेखा जी ने मुझे जो भी बोला, I don't want to repeat it, but she really enjoyed the film, and she was very proud of Riya and me. No, it was comfortable. पहली बात तो ये आप लोगों की बहुत तारीफ़ है, तारीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बादशाह वहाँ का कंसिडर करते हैं या लोग कंसिडर करते हैं. बट आई थिंक कि कभी भी किसी भी लिहाज से इस चीज़ ने मुझे हिंडर नहीं किया, ना कोई रुकावट आई है इस चीज़ की वजह से कि मैं मेरे काम में या मेरी परफॉर्मेंस में या कोई झिझक आई हो किसी किस्म की. सो आई लाइक टू think of my work rather than the results, because काम अगर अच्छा होता है तो results फिर खुद ब खुद मिल जाते हैं. तो झिझक सिर्फ काम के दौरान होती है कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा. मौका मिले क्यों नहीं, जाहिर सी बात है. आई थिंक कोई भी मैं बॉलीवुड आया हूँ अगर और आगे हॉलीवुड का मौका मिले, I would love to actually work in various industries around the world, film and television industries around the world, because उसी में I think एक actor की growth होती है, coming in contact with different cultures, with different people. It depends. I don't want to be the flavor of the season over there. तो अगर कोई भी रोल ऐसा आए जिसमें मैं मैं कुछ उसके साथ कर सकूं, जहाँ मैं एक इंडियन एग्जॉटिक गर्ल नहीं हूँ पर एक कैरेक्टर हूँ, एक एक्टर हूँ, तो 100% मुझे ऐसा कोई रोल अगर करने को मिले तो मैं 100% करूँगी. मैं सिर्फ जो फवाद सर ने कहा है मैं उसको रीइटरेट करती हूँ कि मैंने बहुत सालों से यही कहा है कि डजंट मैटर कौन सी लैंग्वेज में मुझे एक स्क्रिप्ट मिलती है, अगर मेरे किरदार में कुछ है जिससे मैं कुछ सीख सकती हूँ, जिससे मैं अपनी एक्टिंग को और मेरे आर्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकती हूँ, तो वाई नॉट. डजंट मैटर चाइनीज़ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर. पाकिस्तानी अवाम से बहुत पॉजिटिव फीडबैक आई है, बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं हाइप, एक शोर मचा हुआ है फिल्म के बारे में. लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं. एंड जब शुरू भी किया था काम करना, तो उस वक्त भी बहुत सारी जो है दुआएं और बहुत सारी जो है मतलब खुशी का इज़हार किया था ऑडियंस ने कि ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है. तो अप टिल नाउ इट्स बीन वेरी पॉजिटिव, शायद उतना ही पॉजिटिव जितना इंडिया में. Dhanush is from the south, okay. Farhan is a director predominantly and a writer. Ayushman was a RJ and a singer. And Fawad's from Pakistani television, and he's a fantastic actor, but coming to a new country is completely different. So, but all of them are so talented that they never made me feel like they were fish out of water. It always felt like I was working with some people who are very extremely comfortable in their own skin and are fantastic actors. So they've all been amazing, and nobody is bad or worse. I think everybody is fantastic. Well, Indian television, I feel, is majorly it runs software that is based on a soap opera format. That happens back in Pakistan as well. There are soap operas that run endlessly for years.
There was one that ran for like 5-6 years, and I think it's still running. So ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर categories in television नहीं होती. There are categories in television there, जो कि शायद is something that is not so much available to the audience here. And that trend is also changing, where people are now going into seasonal formats, where there's like 13 episodes in a season or 10 episodes in a season. So वहाँ पे there's a range of, there's something from a telefilm to a mini series to a series to a soap, and I think that makes the comparison a bit unfair between Indian television and Pakistani television. Where here I feel cinema is the strength, there I feel television has been the strength. Somewhere down the line, I think it became very regressive and horrible. And Dad did this show called 24 last year, and the kind of response that he got for it was unprecedented. And so I feel like there is an audience for it. It's not like the audience is not there. That's why Zindagi channel is doing so well, and Zindagi Gulzar Hai and Humsafar and Behad and all these shows of his are doing so well, because the audience is starved for good content. And I think producers, television producers especially, should stop thinking the audience is dumb and actually make good content. Well, to be very honest, I was asked the question. I was kind of put on the spot. But yes, I feel, and like any other actor, I would definitely like to get into behind the camera at some point in time. It's all about approach, how you make it digestible by the audience. So I would never place a restriction on what kind of content, because I feel that when a script comes to you, you have the ability to sit down with your writer and refine it further and make it something that is in line with your vision, because it is a visual medium. You look at a scene and you imagine how it is going to pan out. So I think that has been my strength a lot of the times, even during acting back in Pakistan. So when someone asked me that question, I was like, eventually yes, I'd love to get into it. I think I've only been able to showcase the way I dress is because I'm an actor. बड़ी एक अजीब सी कैफियत थी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो वहाँ पर होता है, ये जो सारी की सारी जो सेरेमनी होती है, वो एक तरह से आप कहें तो it's such a healthy environment. I feel it's like एक बड़ा मज़ेदार सा it is a form of entertainment for the audience, yet at the same time people representing their nation, their national, their beliefs, but in such a harmonious way. अगर आप notice करें, the exchange of the guards as well, it starts off with a very nice cute little joust but ends with a handshake, and that goes to say a lot. that शायद एक ऐसी कैफियत है जिसको आप explain नहीं कर सकते. एक साथ रिहर्स भी करते होंगे 100%. इतना कोऑर्डिनेशन तो नहीं हो सकता. नहीं, लेकिन इतनी जान, इतने पैशन, इतने जोर के साथ करते हैं कि जो देखने वाला होता है उसके तक रूंगटे खड़े हो जाते हैं. एक अच्छे अंदाज में, जिस तरह होता है कि आप you're overcome by it, you're overwhelmed by it. मैंने उस साइड से भी तकरीबन 3 दफ़ा देखा हुआ है. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने 3 दफ़ा देखा हुआ है फर्स्ट हैंड क्लोज हाउ इट हैपन्स ऑन द अदर साइड, और इस साइड पे भी देखा है. मैं तो अगर कल को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं, मैं तो अगर दुनिया का वज़ीर आज़म बन सकूं तो मैं कहूँ कि सारी की सारी दीवारें तोड़ दें. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम कहते हैं कि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, लेकिन हम इस बात को इतना सीरियसली लेते नहीं है. ये पिछले 20 साल से हमने ये रट लगाई हुई कि जी ग्लोबल विलेज है, एक्सेस टू ऑल पीपल. तो अगर ग्लोबल विलेज है तो लेट्स बी ग्लोबल सिटीजन्स, लेट्स बिहेव लाइक दैट. अगर पहल करेंगे, जितने भी लीडर्स हैं इस काम में पहल करेंगे, तो लोग भी उस चीज़ को देख के फॉलो करेंगे. एंड आई फील कि वो वक्त दूर नहीं है, क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट की सिचुएशन देखें, कितना मतलब इट्स सैड हाउ थिंग्स हैव टर्न्ड आउट. और किसी पे उंगली उठाना या कुछ भी करने से फ़ायदा कोई नहीं है. फ़ायदा इस चीज़ में है कि हम इस चीज़ को रिजॉल्व कर दें फाइनली, और रिजॉल्व सिर्फ हम लोग मिलकर कर सकते हैं. तो ये परसेप्शन लीडर्स जो है उनकी क्लियर कर सकते हैं. मैं बताऊं, मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है कि जो 2 गेट है ना, उसके दरमियान में एक फेरा लगा के आऊँ मैं, विच इज़ ऑन दैट लाइन. बिकॉज सच पूछें तो अगर कोई ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शन या कोई भी किसी किस्म की फॉर्मेलिटी ना हो, अगर आंखें बंद करके आप इजाज़त होती, कोई दीवार ना होती, अगर आप क्रॉस कर जाते, आपको पता ही ना लगे क्या फ़र्क है. मैंने ये बात नोटिस की
बॉर्डर की तरफ जाते हुए, अटारी की तरफ जाते हुए, कि यार जब वाघा की तरफ हम आते हैं उस साइड से, BRB की साइड से, जो खेत खलियान हैं, जो घर हैं, जो आर्किटेक्चर हैं, जो लोग हैं, जो इनका बात करने का अंदाज है, लैंग्वेज है, इट इज़ सो सिमिलर, इट्स नॉट इवन फनी. मतलब यूर लाइक मैं उसी ढाबे में बैठा हूँ, उसी जगह पे खाना खा रहा हूँ. एंड समटाइम्स इट सॉर्ट ऑफ मेक्स यू फील सैड एज वेल कि काश जो ना हम सिर्फ एक लंच के लिए क्यों ना क्रॉस करके आ जाए करें टू हैव लंच. सो इट इज यूरोप में हो सकता है, इधर नहीं हो सकता. शायद हो जाए किसी दिन, शायद हो जाए, कुछ पता नहीं वक्त का कुछ. मुझे लंदन का वीज़ा, मतलब इंग्लैंड का वीज़ा लग गया, मतलब मैं कहीं भी जा सकती हूँ यूरोप में. और एक चीज़ जो मुझे याद आई, विच इज़ आई थिंक समथिंग टू नोट, ऑडियंस बैठी थी मेरे सामने और उस तरफ भी ऑडियंस थी, और दोनों कह रहे थे कि जिंदाबाद का नारा लगाओ. दैट जस्ट शोज कि दे, अगर मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहा हूँ, ना वो नाराज़ है ना वो नाराज़ है. In fact, by the end of it, when I got off, I met a few of the gentlemen, and they were like, "Yeah, best of luck." So मेरा तो हमेशा से मैसेज ये रहा है, बल्कि मेरा मैसेज सबसे पहले ये है कि ignore what is hateful. अगर हम उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देना, मैं समझता हूँ कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी, इट्स अ ब्लेसिंग एज वेल in bringing the ties together in this global village that we call it, in communication, but at the same time उसके cons बहुत सारे हैं कि जहाँ पे anonymous figures आके जो हैं जो मर्जी all fall बोल के चले जाते हैं, and people actually then instigate हो जाते हैं लोग. and it's not difficult to instigate because अगर आप छोटा सा भी कोई rumor लगाते हैं ना, चाहे वो rumor ही क्यों ना हो, तो वो एक it just it gathers moss the whole process. तो मेरी जो है अगर पहली रिक्वेस्ट है किसी से, तो ये है कि इस चीज़ को कोशिश करें, जितना दूर रह सकते हैं इस चीज़ से आप रहें. इसमें इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, देयर इज़ नो न्यूज़ इन दैट. द रियल न्यूज़ इज़ इन द फैक्ट वेयर वी सी समथिंग दैट इज़ बेनिफिटिंग अस rather than seeing what is hateful. Any place that Indians can go without anything is नेपाल जा सकते हैं ना हम लोग without a visa. नहीं, और ये तभी हो सकेगा, ये तभी हो सकेगा जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो, and then you petition in front of the government and say कि यार let us have this facility. It has to reflect in the public opinion as well. Doing this film called Dolly Ki Dolly, a girl from Punjab who gets married to various boys and leaves them behind by conning them. I think ये एक real life story से inspire हुई है. और एक दूसरी है प्रेम रतन धन पायो विद सलमान. आई थिंक मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत आई थिंक इज़ द पीपल अराउंड मी, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, पीपल हु लाइक माई वर्क. कोई जो भी किसी को भी अगर जो भी मुझे प्यार देता है वो मेरी लाइफ को खूबसूरत बनाता है. ऐसे कोई ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट्स थे नहीं क्योंकि पूरी फिल्म ही फ़नी है, तो शूटिंग के वक्त ही हम लोग बहुत हंसते थे, पर हमने बहुत ज़्यादा पार्टी की है. जो मुझे इनकी चीज़ एक बात बहुत पसंद आती है कि शी स्पीक्स अ माइंड फ्रीली एंड नॉट विद एनी सेंस ऑफ नेगेटिविटी. आई थिंक इनकी शी हैज़ वेरी, एक तरह से आप कहें प्योर थॉट्स के हैं, ठीक है ना, कि she genuinely means what she's saying, and it is actually a very positive and unoffensive thing that he's saying, जो कि मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा misconstrue अगर कोई करता भी है वो शायद इस चीज़ को उस तरह देख नहीं रहा. and I really enjoy that part of her personality because उसमें फिर ये होता है कि there is कुछ छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं, कोई दिखावा नहीं है. so you feel very safe and secure in such company. I really like that one. अच्छा. हाँ. फवाद के बारे में आजकल ऐसे यू डोंट मेक मेन लाइक दिस. तो मैं बोल रही हूँ अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, तो अभी आई एम जस्ट लाइक यार बुरी बात क्यों? बुरी बात है क्योंकि व्हाट डू यू मीन फवाद, ऐसे सेट ऑफ यू कांट सेट एन एग्जांपल लाइक दिस. और फिर मैं बोलती हूँ अभी मुझे ऐसा लड़का कैसे मिलेगा लाइफ में. शादीशुदा है ना. फवाद जैसा, राठौड़ जैसा मतलब नहीं, मैं इतनी भी मिली नहीं हूँ कि मैं राठौड़ को ठीक कर लूँ.